मदवल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये नीलाक्षीराभिषायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदयि कृष्ण कन्हैया लाल जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महाराणी की जय। श्री વલ્લભાધીશ की जय। આપણી સાથે જય જય શ્રી પધારે એ પહેલા બધાને સૌરભને વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। કોઈને કોઈ ભજન કે કીર્તન ગાવું હોય તો we have couple of minutes if you want। જય જય શ્રી પધારે તે પહેલા આપણે કીર્તન કે ભજન કશું ગાવું હોય તો કહી શકે છે। Did you call her? Yeah. Natwar Shyam Gopal. Let's listen. हाँ. So lecture चालू થઈ ગયો છે પ્રવચન? Yeah, હમણાં 2 મિનિટમાં થશે. તો તમે કેટલા વાગે સુધી છે તો? મારું તો 5-10 મિનિટમાં હું તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને નીકળી જઈશ. એટલે હું તમને પછી ફોન કરું તમને બહુ રાત ના પડી હોય તો. હા, કઈ વાત નહીં. ના ના કઈ રાત નથી સર, પરમે કઈ વાત નહીં. હા, હું તમને ફોન કરીશ, તમને અનુકૂળ હોય તો આપણે વાત કરીશું, બરાબર? ચોક્કસ. હા. ખાઈ લીધું ને? વલિયારી ખાવ છો? अच्छा चलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
Chakshusa, एक भजन गाइस तू? Can you sing a small bhajan for us? हेलो, जय श्री कृष्ण। Yes, sir. Thank you. भजन। Yeah. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। અરે એ પહેલા આપણે એક ભજન ગાઈએ. Once he turns on in his video, we will start our satsang. Go ahead. Go ahead, Chakshusa. हाँ। नैया झुकावी मैं तो जो जे डूबी जाय ना, जाको जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। श्रद्धाना दीवडाने जल तो तू राखजे, रोज रोज प्रीत केरो दिल ए राखजे। जो जे आदिवरामा रुतायना, जाको जाको दीवो मारो जो जे रे बुझायना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जायना, जाको जाको दीवो मारो जो जे रे बुझायना। स्वार्थनु संगीत चारे कोर बाजे, स्वार्थनु संगीत चारे कोर बाजे। कोई નથી કોઈનો દુનિયામાં જે તનનો તમરો જોજે બેસુરો તાયના, જાકો જાકો દીવો મારો જોજે રે બુજાયના। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जायना, जाको जाको दीवो मारो जो जे रे बुझायना। पापने पुण्यना भेद रे भूलाता, पापने पुण्यना भेद रे भूलाता। रागने द्वेष आजे घट घट घूटाता, जो जे आजीव तरमा झेर प्रसरायना, जाको जाको दीवो मारो जो जे रे बुझायना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जायना, जाको जाको दीवो मारो जो जे रे बुझायना। श्री कृष्ण।
की जय। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. જયશ્રી પધારી રહ્યા છે આપણી સાથે. આપણે બધાના તરફથી કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગ તરફથી જયશ્રીને કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. જયશ્રી, આપશ્રીનો વિડીયો ઓફ છે તો આપશ્રીને અમે દર્શન નથી કરી શકતા. દંડવત પ્રણામ. જે આપશ્રીનું શ્રી કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગમાં ખૂબ જ સ્વાગત છે અને તમે અમારી સાથે આવી રીતે જોડાયા ટાइम લઈને. आप हमारे साथ पधारे वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. आपके बिजी स्केड्यूल्स में हमको हमारे लिए टाइम निकाला. कितने महीनों से ये बातें हो रही थी सत्संग होने की. सो फाइनली वी गॉट चांस टू डू अ सत्संग विथ यू. थैंक यू सो मच. आप श्री को थोड़ी तकलीफ हुई उसके बदल खूब खूब हमारे वजह से सॉरी. टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई. आप श्री के बारे में कल्पेश अंकल कुछ कहेंगे. गो हेड कल्पेश अंकल. जय जय श्री दंडवत प्रणाम. कल्पेश યુએસએ થી વાત કરું છું. અત્યારે અમદાવાદ આવેલો ડોશીવાડા પોલમાં આપ શ્રીના દર્શન થયા હતા. અખંડ મંડલાચાર્ય જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના દ્વિતીય અમૃત श्री प्रभुचरण श्री विठ्ठलनाथ जी से गुजारी जी प्रभु परमदयालना छठा आत्मज श्री यदुनाथ जी ना वंशावत 17મી પેઢી માં મહારાષ્ટ્રના જ્યેષ્ઠ આત્મજ શ્રી વલ્લભ કુલભૂષણ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી ગોવિંદ લાલજી મહારાજ શ્રીના તૃતીય આત્મજ સર્વોત્તમ પ્રિય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વિજયકુમારજીના મહારાજ શ્રીજીના જ્યેષ્ઠ આત્મજ સ્વરૂપે આપ શ્રીનું પ્રાગટ્ય શ્રાવણવદ બારસના શુભ દિવસે દિલ્હીમાં થયો હતો. બાલ્યકાલથી જ પુષ્ટિ માર્ગ તથા સનાતન હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે આપ ઉત્સાહિત રહ્યા છો. આપ શ્રીએ શ્રીમદ ભાગવત વ્યાકરણ ન્યાય ષોડશગન જેવા અનેક વિષયોનું અધ્યયન શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ 16 અમદાવાદના પરમ શ્રદ્ધેય ગોલકવાસી શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી દાદાજીના સાનિધ્યમાં કર્યું. આપ શ્રીના માર્ગદર્શન અને અધ્યક્ષ સ્થાને વિવિધ વૈષ્ણવ મંડળો અને સંસ્થાઓ કાર્યરત છે, જેના દ્વારા આજે વૈષ્ણવોને આત્મપોષણ તૃપ્તિ થાય છે. કૃપાનિધિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, શ્રી પુરુષોત્તમ સત્સંગ મંડળ અને પૃષ્ટિ યુવા મંચને આપ શ્રી દ્વારા પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. આપ શ્રીની અધ્યક્ષતામાં સુરત ગુજરાતમાં શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલી કાર્યરત છે. ધર્મ તેમજ સંપ્રદાય પ્રત્યેની આપ શ્રીનો અભિગમ એ જ છે. આજનો યુવા વર્ગ તેમના નાના બાળકો અધિકથી અધિક ધર્મ તરફ પ્રેરિત થાય, તેમનામાં આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય અને એ હેતુથી યુવા વર્ગ તેમજ બાળ વર્ગ માટે આપ સતત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, શિબિરો અને નાના બાળકો માટે બાળ પુષ્ટિ પાઠશાળા જેવા તેમજ યુવાનો માટે પુષ્ટિ યુવા મંચ શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલી સુરત તથા અનેક શહેરોમાં કાર્યરત છે. આપ શ્રીના માર્ગદર્શનમાં પુષ્ટિ યુવા મંચ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનનો હાથ ધરાયું છે. તેમાં માધ્યમથી સેંકડો યુવાનો વૈષ્ણવ દૂર વ્યસનોથી મુક્તિ મેળવીને સુરક્ષિત જીવનનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ બહુ જ અનોખી અને બહુ અદ્ભુત સેવા છે. જે શ્રી આપશ્રીનો મિડાસ્ટર છે, મને લાગે છે કે એ બહુ અદ્ભુત કહેવાય કે ઠાકોરજી આમાં લોકોના મન અને હૃદયમાં જે પરિવર્તનને હૃદય પલટો થયો છે એ ખરેખર નમનીય છે અને વંદનીય છે. આ સાથે વૈષ્ણવમાં ગૌમાત્યા પ્રત્યે સદભાવના અને સદાચાર પ્રગટ થાય એ હેતુથી આપ શ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગૌ સંરક્ષણ અને ગૌ સંવર્ધન માટે ગોતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળા સુરતમાં કાર્યરત છે. આપ શ્રીના પિતૃચરણની પ્રેરણાથી શ્રીમદ ભાગવત કથા, ગીતા તેમજ સાંપ્રદાયિક અનેક વિષયોની કથા પર શિબિરો અને વચનામૃતો દ્વારા વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પોષિત કરી રહ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વમાં પુષ્ટિ ધર્મ પતાકા લહેરાવવાની ઉદ્દેશ્યથી છેલ્લા 12 વર્ષોથી આપ યુકે, યુએસએ, ગલ્ફ, યુરોપ, આફ્રિકા જેવા ક્રાંતિકારી વચનામૃતો દ્વારા સુષુપ્ત વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને જાગૃત કરી છે. આપ શ્રીના વચનામૃત યુવા વર્ગને વિશેષ આકર્ષિત કરે છે. આપ શ્રીના સાનિધ્યની તો શું ગાથા ગાઓ, પણ
પૂજ્ય યુવા આચાર્ય શ્રી ધર્મ અને સંસ્કૃતિના સજાગ પ્રહરી છે. આપ શ્રી પ્રત્યેક આવરણને હટાવી દઈ અને સચેત કરી આપે છે. એવા શ્રી યદુનાથજીના ઘરના દિવ્ય વારસો લઈને પ્રજ્ઞેલા વંશજ યુવા આચાર્ય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી હરિરાયજી મહોદયને સૃષ્ટિ સંપ્રદાયની અનેક દિવ્ય જ્યોત સમાન છે. આ માનવ સેવા, ભક્તિ સેવા અને પ્રેમથી પુષ્ટિમય બને એ જ આપશ્રીનો ઉદ્દેશ્ય રહ્યો છે. આવા સુંદર પુષ્પો આપને ચરણમાં પધરાવી કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગ વતી હું આપને સૌ વૈષ્ણવ તરફથી નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આપની આ વાણીનો અમને બધાને ભાગ્ય ઉદય કરી આપો. આપના વચનોથી અમને આધીન કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. વલ્લભાધીશ કી જય. જય જય શ્રી. સેજલબેન, તમે કઈ બોલવાના છો? ના જયશ્રી, આપની વાણીને અમે સાંભળવા માટે વેઇટ કરી રહ્યા છે. બેકગ્રાઉન્ડ જે છે બહુ લાઉડ નથી ને? ના, બરાબર છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. श्री गोपाल लाल प्यारे की जय. बोलो गौ माता की जय. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत्. प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा. कृतार्थोऽहं 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 न संशय. शिरश्च पादाम्बुजसत् प्रणाम. योग्यं ददौ यो यदुवंशचन्द्र. स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो. गोपाललालं शरणं प्रपद्ये. गोपाललालं शरणं प्रपद्ये. निस्साधन जन उद्धार करण प्रकटीकृत. गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम.
श्रीवाक्पतये नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुकोमल युगल चरणारविंद में आओ हम सब कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। श्री कृष्ण कृपा सत्संग मंडल द्वारा आयोजित यह पुष्टि सत्संग में जुड़े हुए आप सभी आत्मीय स्नेही श्री वल्लभ चरण अनुरागी सत्संग प्रेमी सेवा परायण श्री वल्लभ के लाडीले आत्मीय स्नेही वैष्णवजन, परम आत्मीय सेजलबेन शाह, जिनके मनोरथ स्वरूप आज प्रथम बार ये कृष्ण कृपा मंडल के सत्संग में उपस्थित होने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ और पूर्व में ही जैसे कहने में आया कि कई दिनों कई महीनों पूर्व आज के सत्संग की तिथि तारीख सुनिश्चित हुई थी और भगवत कृपा से ही आज ये सत्संग में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो निमित्त बने हैं ऐसे सेजलबेन को हृदय से खूब खूब शुभाशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। उनका ऐसा आग्रह के सत्संग में अपनी राष्ट्रभाषा में प्रवचन का सत्संग का क्रम चले तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। विषय की चर्चा चल रही थी तो भगवद अनुग्रह से ही उस समय शिक्षा पत्र चिंतन विषय सुनिश्चित हुआ। आनंद इस बात का है कि आप समयांतर अभी भी या ऑनलाइन के माध्यम से भगवत सत्संग को प्राप्त हो रहे हैं। भागवतकार कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत अंतर्गत कई बार हमने श्रवण करी है कि हमारे जीवन में सत्संग कब प्राप्त हो।
बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। तो भागवतकार बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि एक जन्म नहीं अपितु बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म के सत्कर्मों का जब संचय होता है प्रियजनों, तब जाके सत्संग सुलभ होता है। ये कोई सरल बात नहीं है, ये इतना सरल भी नहीं है। तब हमारे श्रवणेन्द्रियों में भगवत नाम, भगवत सत्संग प्राप्त होता है, तब हमारी वाणी द्वारा वह सत्संग प्रकट होता है। बहुजन्म समर्जित ब्राज श्री वल्लभ की ही कृपा से आप सबन को ये सत्संग सुलभ हुआ है। पुष्टि भक्ति मार्ग में दो ही बातों का विशेष हमारे आचार्यों ने बारंबार अनेक ग्रंथ, अनेक वचनामृतों में स्पष्टीकरण किया है कि पुष्टि जीवों के दो ही मुख्य कर्तव्य हैं। ध्यान दें, एक है सेवा और दूसरा है सत्संग। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का भी यही सार है। जो आप श्रीमद् भागवत के महात्म्य को देखें तो वहां भी यही स्पष्ट होता है, सेवा कथा रसमयो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण आख्यान के आप दर्शन करें तो गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को यही उपदेश देते हैं कि हे पिताजी, आप ये संसार का त्याग करके, संसार में रही हुई आसक्ति का त्याग करके सेवा और कथा में अपनी रुचि, अपनी अभिरुचि को बढ़ाएं। और श्रीमद् भागवत के यही सिद्धांत को हमारे जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ अंतर्गत प्रतिपादित किया कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत, कि जो भी पुष्टि जीवों की सेवा और कथा में अभिरुचि है, उनके हृदय में रहा हुआ भगवत भाव कभी भी नष्ट नहीं होता। जिन वैष्णवों को ये दोनों ही परस्पर एक दूसरों के साथ चलते हैं, सेवा भी आवश्यक है और कथा सत्संग भी आवश्यक है। कोई यूं कहे कि मैं केवल भगवत सेवा ही करता हूं, मुझे सत्संग के लिए समय नहीं है, तो वो अधूरा वैष्णव है। और कोई वैष्णव यूं कहे कि मुझे सत्संग में रुचि है लेकिन सेवा का समय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उसकी वैष्णवता भी अधूरी है। सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे। हमारे भगवत भाव के ये रक्षक हैं। जब जब जीव सत्संग में आता है तो सत्संग के परिणाम स्वरूप उसके भावों का सिंचन होता है, नए नए मनोरथ प्रकट होते हैं, नई नई भावनाएं प्रकट होती हैं, और परिणाम सेवा में विशेष आनंद प्रियजनों सत्संग से ही प्राप्त होता है। जब जब हम सत्संग में होते हैं और सत्संग अंतर्गत जो भगवदियों के चरित्र का दर्शन करें, तो वो दर्शन के माध्यम से हमारे भावों की अभिवृद्धि होती है।
हम भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे बड़े भागी भगवदीय प्राप्त हुए हैं कि उनके पद चिन्हों को देखकर हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं। 3 प्रकार के जीवों का विचार हम कर सकते हैं ये संसार में। एक जीव है दुर्भागी, दूसरा जीव है कम भागी, और एक जो जीव है वो बड़भागी है। ये संसार में दुर्भागी कौन है? जिसे सेवा के सत्संग के अवसर प्राप्त नहीं होते, वो जीव मानो दुर्भागी है। जो संसार के लौकिक संबंधों में ही इतना व्यस्त रहता है, न उसको सेवा के लिए न उसको सत्संग के लिए समय है, न एक घड़ी आधी घड़ी भगवत नाम लेने के लिए भी समय नहीं है। प्रियजनों, वो दुर्भागी है। दूसरा एक जीव है कम भागी। वैष्णव कुल में जन्म मिले, सेवा ठाकुर जी की घर में विराजती हो, सेवा की भी समझ हो, लेकिन सेवा में तत्पर न हो, सत्संग में रुचि न हो, ऐसा जीव कम भागी है। मानव जीवन प्राप्त हो, मानव जीवन में भी वैष्णव कुल में उसका जन्म हो, फिर भी न सेवा के अवसर न सत्संग के अवसर वो खोजे, ऐसा जीव कम भागी है। और एक जीव है आप जैसे बड़भागी जीव, जो ये न केन प्रकारेण सत्संग के अवसर खोजते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में देवताएं मनुष्य की स्तुति करते हैं, क्योंकि भागवत जो है वो स्तुतियों का सार है, संग्रह है, जहां देवगण मनुष्य की स्तुति करते हैं कि आप कितने बड़भागी हैं कि आपको ये मानव देह मिला, आपके जीवन में सेवा के सत्संग के अवसर आपको प्राप्त होते हैं। हम तो ये स्वर्ग लोक में हैं, न हमको सेवा के अवसर है, न कोई सत्संग के समारोह है, बस केवल भोग भोग और भोग की ही वृत्ति है। हे ईश्वर, ये स्वर्ग लोक में रह के हमने कोई सत्कर्म किए हों तो हमें मानव देह प्राप्त हो। विचार करो प्रियजनों, स्वर्ग में रहकर देवगण भी जो मनुष्य की स्तुति करते हो, तो ये मानव जीवन की धन्यता कितनी बढ़ जाती है। सर्वोत्तम जीव है बड़भागी जीव। भगवदीय तो कहते हैं कि जगत में सो ही जीव बड़भागी, श्री वल्लभ के शरण आए के हरि की सेवा मांगी, श्री भागवत रसपान करत नित सत्संग अनुरागी, जगत में सो ही जीव बड़भागी। जो नित्य सत्संग करता है, हमारे आचार्यों की दृष्टि में, हमारे भगवतियों की दृष्टि में, वही जीव बड़भागी है। सत्संग मुख्य है, और यही श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, षोडश ग्रंथ आदि का जो सार तत्व निचोड़ है कि ये न केन प्रकारेण पुष्टि जीव सत्संग की ओर अग्रसर हो। और यही विचार प्रियजनों हमारे
श्री आचार्य चरण श्री हरिराय महाप्रभु ने भी शिक्षा पत्र के अंदर प्रकट किया है। 41 जो शिक्षा पत्र हैं उसके जो सार तत्व का, जैसे दूध होता है, दूध में से दही, दही में से छाछ और छाछ में से अंत में फल स्वरूप नवनीत प्राप्त होता है। प्रियजनों, ये शिक्षा पत्र के सार रूप जो नवनीत की बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्र स्थान में श्री हरिराय महाप्रभु सत्संग की ही बात कर रहे हैं। और आपने तो यहां तक कह दिया कि ये कलयुग में सत्संग से भी बढ़कर दुस्संग है। ध्यान दो, जीवन भर का सत्संग और क्षण भर का दुस्संग, दुस्संग बड़ा है। श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि दुस्संग से डरपत रहियो। ध्यान दो, ये संसार में डरने जैसी कोई वस्तु हो तो वह है दुस्संग। त्यज मन हरि विमुखन को संग, त्यज मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजत, पड़त भजन में भंग। त्यज मन हरि विमुखन को संग। सत्संग के लिए तैयारी होती है और कहीं कोई ऐसे दुस्संगी वैष्णव का फोन आ जाए कि उसका संग क्षण भर भी हो जाए और हमारा सत्संग छूट जाता है। कहीं ना कहीं हम सबने ऐसा अनुभव किया हुआ है। इसलिए हमारे आचार्य चरण दुस्संग को बड़ा मानते हैं। दुस्संग से डरपत रहियो। भगवत भाव अग्नि रूप है। नित्य सत्संग के क्रम में 252, 84 और खास करके यूं कहें जो आज का विषय है कि जिसके बिना प्रत्येक वैष्णव का सत्संग अधूरा है, शिक्षा पत्र, जिसको हम सदाचार ग्रंथ कहते हैं। शिक्षा पत्र जो है ये हमारा सदाचार ग्रंथ है। 41 शिक्षा पत्र और पुष्टि मार्ग के अनेक विषयों का चिंतन श्री हरिराय महाप्रभु ने यह शिक्षा पत्र अंतर्गत किया है। ऐसा कोई भी विषय या ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसका विचार इस शिक्षा पत्र में न हो। इसलिए इसको आचरण ग्रंथ कहते हैं कि केवल श्रवण नहीं करना है, केवल पठन नहीं करना है, केवल दर्शन नहीं करने हैं, अपितु हमारे सद आचरण में ये ग्रंथ को प्रकट करना है। इसके अनुरूप जैसे भगवत गीता की फलस्तुति में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इतनी सुंदर कृपा, इतनी दिव्य कृपा मुझ पे की है, तो अब अंत में करिष्ये वचनम तव, अब इतनी और कृपा कर दो कि जो भी आपने मुझे अपना जान के उपदेश दिए हैं उसके अनुरूप मेरा जीवन हो जाए। ये बड़ी बात है। ज्यादातर वैष्णवों को सुनने में रुचि है। सत्संग के अवसर आते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं,
दर्शन कर लेते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि करिष्ये वचनम तव, जो भी सुने क्या उसके अनुरूप हमारा जीवन बन रहा है। अर्जुन ने भगवान से यही विनती की कि हे प्रभु करिष्ये वचनम तव, अब आप इसके अनुरूप मेरा, आपके जो भी वचन है, हे प्रभु आप इतनी कृपा करो कि उसके अनुरूप मेरा जीवन बन जाए। ये शिक्षा पत्र भी प्रियजनों कुछ ऐसा ही ग्रंथ है। जब जब ये शिक्षा पत्र को हम दर्शन करते हैं तो शहराय महाप्रभु के युगल चरणारविंद में यही विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु बस ऐसी कृपा करो कि जो उपदेश आज से 500 वर्ष पूर्व भले निमित्त आपके लघु भ्राता श्री गोपेश्वर जी हों, लेकिन ये उपदेश तो आपने हम सभी के लिए ही कहे हैं। तो हे प्रभु आप इतनी कृपा करो कि जो भी आपके वचन हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए, जो भी आपकी आज्ञाएं हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन बन जाए। ये सदाचार ग्रंथ है। ज्यादातर हम देखते हैं कि वैष्णव को ये कठिन लगता है, 252 84 की वार्ताएं ले लेते हैं, स्तोत्र इत्यादि के पाठ कर लेते हैं और फिर आश्रय इत्यादि का पान करके वो सत्संग का क्रम विराम हो जाता है। लेकिन जो अनुभवी वैष्णव हैं वह अपने सत्संग में शिक्षा पत्र को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। एक एक शिक्षा पत्र बड़े ही रोचक हैं। आज मैं विचार कर रहा था कि कौन से शिक्षा पत्र, क्योंकि ये चिंतन का विषय है, कोई भी एक शिक्षा पत्र को लेके भी जो हम चर्चा करें तो काफी समय लग जाए, लेकिन एक श्लोक भी जो हम समझ जाएं, क्योंकि श्री यमुना जी की तो यूं कहें कि महाप्रसाद और जल जमुना को तनक तनक, कि भाई कोई महाप्रसाद की कणिका मिल जाए या यमुना जी को जल मिल जाए, वो तनक तनक भी मिल जाए तो भी बहुत है। तो ऐसे ही आज के ये सत्संग में ये शिक्षा पत्र के 41 जो पत्र हैं उनमें से मैं विचार कर रहा था कि कौन से पत्र के दर्शन करें, और वो पत्र में से भी कौन सी बात ऐसी मैं आपसे कहूं कि वो आपको विशेष आज के समय में कुछ हितकारी हो। तो दर्शन और चिंतन करते करते बड़ी ही सुंदर बात शहराय महाप्रभु एकादश 11वें शिक्षा पत्र में किसी वैष्णव ने प्रश्न किया कि प्रभु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। आज ये प्रश्न मानो हम सबका है। हम भी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, श्री वल्लभ कुल के सन्मुख होते हैं, और कहीं ना कहीं ये विचार कि प्रभु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। और उस समय मानो श्री हरिराय महाप्रभु ने ये एकादश शिक्षा पत्र अंतर्गत एक नहीं अभी तो 4 उत्तर, यानी यूं कह सकते हैं कि कर्तव्य चतुष्टय का निरूपण शहराय जी हमको एकादश शिक्षा पत्र में कर रहे हैं। और ये चतुर्थ श्लोक है 11वें शिक्षा पत्र का, बड़ा ही सुंदर है। पहले श्लोक का गान करें।
गुणगानम तथा दुख भावनम देयमेव च तथा त्यागः सिद्धदृश कृत्य में तच्चतुष्टयम् गुणगानम तथा दुख भावनम दैन्यमेव च। ध्यान दें, श्री हरिराय महाप्रभु कर्तव्य चतुष्टय का निरूपण ये 11वें शिक्षा पत्र के 4थे श्लोक में आप कर रहे हैं कि हम पुष्टि जीवों के 4 ही कर्तव्य हैं। और श्री हरिराय जी तो इतना स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये 4 ही को हम बड़ी ही निष्ठा दृढ़ता के साथ जो इसका आश्रय करें तो फिर कोई भी चीज, कोई भी कर्तव्य, कोई भी कार्य फिर शेष रह नहीं जाता। सबसे पहला कर्तव्य है गुणगान। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि गुणगाने सुखा व्याप्ति गोविंदस्य प्रजायते। श्री आचार्य चरण षोडश ग्रंथ अंतर्गत निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं कि जो भगवत गुणगान में जो आनंद आता है, जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख और किसमें कहां है? जीव और क्या कर सकता है? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। जीव स्वभाव से दुष्ट है, मंत्रहीन है, क्रियाहीन है और यहां तक कि वो भक्तिहीन है। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में वो केवल एक ही साधन उसके लिए शेष रह जाता है, वो है भगवत गुणगान। श्री आचार्य महाप्रभु के स्पष्ट शब्द हैं कि वदद्भिरेव सततम स्थेमित्येव मे मति तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। और कुछ याद रहे न रहे, लेकिन इतनी सी एक छोटी सी बात अवश्य न भूलें। श्री आचार्य महाप्रभु के ये वचन कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम। कोई भी स्थिति हो, सतत गुणगान। आज के समय में जिसे एक साधारण भाषा में जिसे कहा जाता है गुजराती में कि सगवड़ियो धर्म। समय मिले तो सत्संग करें, समय मिले तो सेवा करें, समय मिले तो भगवत नाम लें। अनुकूलताओं पे धर्म नहीं चलता है, ध्यान दें। हमारी अनुकूलताओं पे धर्म नहीं चलता, धर्म के लिए अनुकूल बनना पड़ता है। जो पुष्टि जीव है ये बात समझ सकता है कि हमारी अनुकूलताओं पे धर्म, जब मुझे समय मिले तब मैं करूं, धर्म ऐसे नहीं होता। धर्म के लिए जो अनुकूल हो जाए, मानो वही वैष्णव है, वही पुष्टि जीव है। गुणगान स्मरणम भजनम च अपि न त्याज्यम इति मे मति। सब कुछ छूट जाए, श्री आचार्य चरण तो यहां तक आज्ञा करते हैं न त्याज्यम, और सब कुछ छूट जाए लेकिन स्मरण और भजन ये न छूटना चाहिए। श्री गोकुलनाथ जी के
हास्य वचनामृत में बड़ी ही सुंदर एक बात आती है। किसी ने आपसे प्रश्न किया कि जयराज, रावण मरा तो रावण का सूतक किसने पाला? श्री गोकुलनाथ जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से मंद मंद हास्य के साथ उसका उत्तर दिया कि वैष्णव, उस समय में तो जिसने पाला उसने पाला, लेकिन कलयुग में भी आज भी कई ऐसे जीव हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। अच्छा, कैसे जयराज, बताइए कि बताओ सूतक में क्या नहीं होता है? कि जयराज, सूतक में न हम सेवा कर सकते हैं, न भगवत नाम ले सकते हैं, न भगवत सत्संग में जा सकते हैं। तब श्री आचार्य श्री गोकुलनाथ जी ने उत्तर दिया कि जो सेवा नहीं करते, जो भगवत नाम नहीं लेते, जो सत्संग नहीं करते, मानो कलयुग में भी वो रावण का सूतक ही पाल रहे हैं। स्मरणम भजनम च अपि न त्याज्यम इति मे मति। भगवत स्मरण सतत। लेकिन आज की स्थिति कैसी हो गई है, कई बार विचार आता है कि जिसका स्मरण करना है उसका विस्मरण हो गया है, और जिसका विस्मरण होना चाहिए उसका बार 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 स्मरण हो जाता है। जो चीज हमें भूल जानी है वो चीज याद आती है, और जो बातें, जो आज्ञाएं हमें याद रखनी है, जिसका स्मरण रखना है, उसका विस्मरण हो जाता है। श्री आचार्य चरण के स्पष्ट शब्द हैं कि स्मरणम भजनम च अपि। भगवत गुणगान से भगवान में प्रीति प्रेम होता है। गुणगान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब जब जीव भगवत गुणगान का श्रवण करता है, भगवत महात्म का श्रवण करता है, तब तब वो ठाकुर जी के निकट पहुंच जाता है। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ स्नेह अधिक विशेष भक्ति। कि जब जब जीव को महात्म ज्ञान होता है तो फल स्वरूप उसके भावों की वृद्धि हो जाती है। महात्म ज्ञान गुणगान अत्यंत आवश्यक है। आप देखो, श्रीमद् भागवत में भी जो रुक्मिणी का जो प्रसंग है, रुक्मिणी ने भगवान को जो पत्र लिख के भेजा है, वो पत्र में भी वो क्या लिख रही है कि श्रुत्वा गुणानु भुवन सुंदर, कि हे भुवन सुंदर, मैंने जब आपके गुणों के गान का श्रवण किया तो उसके फल स्वरूप मुझे आप में प्रेम प्रीति, उसके फल स्वरूप मुझे आपसे प्रेम हो गया। श्रीमद् भागवत में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, और विशेषतः पृथु राजा का जो चरित्र है आप दर्शन करें। जब उनके कार्य से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि कुछ मांगो, तब दो हाथ जोड़कर पृथु महाराज प्रभु से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, बस इस संसार में और तो कुछ मांगने जैसा है नहीं, लेकिन आप जो कृपा ही करना चाहते हो तो मेरे रोम रोम में श्रवणेन्द्रिया प्रकट हो जाए।
क्योंकि आपके गुणों के गान श्रवण करने के लिए मेरे ये 2 कान पर्याप्त नहीं है। हे प्रभु, आपकी ये कथा, आपका ये सत्संग, आपका ये भगवत नाम चिंतन श्रवण करने के लिए ये केवल ये 2 श्रवणेन्द्रियां पर्याप्त नहीं है। हे प्रभु, आप जो कृपा ही करना चाहते हो तो मेरे रोम रोम में श्रवणेन्द्रियां प्रकट हो जाएं। ये गुणगान है। गुणगान किसे कहते हैं? जो हम सुनते हैं वो गुणगान नहीं है। जो हम सुनते हैं वो श्रवण नहीं है। लेकिन गुणगान श्रवण वो है जो हम सुने बिना रह न सकें। सत्संग क्या है? जो हम करते हैं वो सत्संग। जिसके बिना हम रह न सकें वो सत्संग है। याद करो वो प्रसंग, दिनकर दास भगवत सेवा में हैं और श्री आचार्य जी के खवास से पूछा कि क्या समय है, और खवास ने उत्तर दिया कि अभी अभी श्री आचार्य जी ने पोथी खोली है। ये भगवत गुणगान के लिए जो व्यसन अवस्था के दर्शन ये भगवतियों ने हमें कराए हैं। खवास बोला कि अभी अभी श्री आचार्य जी ने पोथी खोली है, बस अब सत्संग का प्रारंभ होगा। और इतिहास प्रमाण है कि दिनकर दास जी ने काची बाटी सिद्ध करी, ठाकुर जी को धराई और भगवत गुणगान भगवत सत्संग के लिए दौड़ लगाई। दौड़ते हुए श्री आचार्य जी के पास आए, हाँफते हुए आए, बैठे। श्री आचार्य जी ने कहा, इतनी उतावली क्यों? कि राज कहीं सत्संग, कहीं भगवत नाम छूट न जाए, आज मेरा सत्संग छूट न जाए। और जहां भगवत गुणगान के लिए, भगवत सत्संग के लिए ऐसी लगनी देखी, तब श्री आचार्य जी ने अपने मुखारविंद से ये वचन कहे कि दिनकर दास, अब तुम जब आओगे तब हम सत्संग करेंगे, तब ही हम पोथी खोलेंगे। ये गुणगान है। नित्य भगवत सत्संग का आग्रह रखें। हमने सत्संग भी नैमित्तिक बना दिया है। कई वैष्णवों ने तो ऐसा सोच रखा है कि बस केवल एकादशी पे ही सत्संग करना है। ऐसा नहीं है। वैष्णव जन उसे कहते हैं जो ये वैष्णवता अपनाते हैं, नित्य सेवा नित्य सत्संग कर नित्य नियमी बन जाते हैं। जिसके जीवन में सत्संग एक जीवन का भाग रूप हो जाए वो वैष्णव है। दिनकर दास की वार्ता में यही तो बोध प्राप्त होता है कि सत्संग के लिए कैसी लगनी होनी चाहिए कि सब कुछ छूट जाए लेकिन स्मरण, सत्संग, भगवत नाम, भगवत गुणगान न छूटे। आज भी ऐसे वैष्णव के दर्शन होते हैं, बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि अपने व्यस्त जीवन काल से लौकिक संबंधों को, लौकिक कार्यों को गौण करके ये निकेन प्रकारेण कोई भी माध्यम, फिर ऐसे जूम के माध्यम से परोक्ष रूप से भी वो सत्संग के लिए जुड़ जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। यही विचार आता है कि मानो श्री वल्लभ का पूर्ण अनुग्रह आप सभी पुष्टि जीवों पे हो गया है। ये श्री वल्लभ की कृपा है, ये श्री ठाकुर जी की कृपा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं तो विचार करो कितने कार्य, कितने लौकिक कार्य हमारे, कितने लौकिक संबंध हैं, इन सबको छोड़ के एक स्थान, एक आसन पे बैठ जाना, सब क्रियाओं को छोड़ देना। नहीं तो
कई बार ऐसा होता है हम सोफे पे बैठे रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ फिर हाथ में वो मोबाइल आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कुछ करते रहते हैं। लेकिन इन सब का त्याग करके, इन सब को छोड़ के थोड़े समय के लिए भी भगवत गुणगान जो हम कर रहे हैं तो ये श्री वल्लभ की कृपा है। स्मरणम भजनम च अपि न त्याज्यम इति में मति। जब सूरदास जी श्री आचार्य जी के पास आए और श्री आचार्य जी ने क्या कहा, कुछ भगवत गुणगान करो। श्री आचार्य जब भी जीव वल्लभ के सम्मुख होता है तो वल्लभ यही आज्ञा करते हैं, कुछ वल्लभ कुछ भगवत गुणगान गाओ, आज भी। और तब सूरदास जी ने क्या गाया, मौसम कोन कुटिल खल कामी, जिन जन्म दियो तिन ही बिसारियो, ऐसो नमक हरामी। और जब ऐसे शब्द श्री आचार्य जी ने सुने तब श्री आचार्य जी ने क्या कहा, अरे सूर होए काहे धिंध्यात हो, कछु भगवत लीला गाओ। और वहां श्री आचार्य जी की कृपा से सूरदास जी को भगवत दर्शन हुए, नंद महोत्सव के दर्शन हुए और उनके मुख से वो बड़ी बधाई, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी। कहने को तात्पर्य कि सूर होए काहे धिंध्यात हो, जो आज भी हम जो ऐसा विचार करें कि मेरे से कैसे सत्संग हो, मैं कैसे भगवत नाम लूं, तो श्री आचार्य महाप्रभु के वो शब्द को आप ध्यान में रखें, सूर होए काहे धिंध्यात हो, आप सब सूर हो। एक असुर कुल में जन्मे हुए एक छोटे से बालक को ये बात समझ में आ गई। असुर कुल में जन्मे हुए आसुरी जीवों के संग पले बड़े एक छोटे से बालक को ये बात समझ में आ गई कि संसार में जो सबसे बड़ा सार है वो भगवत नाम है। आपको वो बालक का नाम मैं याद दिलाऊं, प्रहलाद। अब विचार करो, कई बार चिंतन होता है कि असुर कुल में जन्म हुआ है, पिता असुर है, आसुरी जीवों के बीच में मध्य में रहता है। और जब नारद जी उनके गुणों का जो वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत अंतर्गत, तो बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि एक तो प्रसन्नता का वरदान देने वाले प्रहलाद जी हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, छोटों से प्रेम करते हैं और अहर्निश भगवत गुणगान करने वाले हैं। भगवत गुणगान में प्रहलाद जी को अत्यंत रुचि है, अहर्निश भगवत नाम उनके मुख में चालू है। विचार करो, आसुरी जीव, आसुरी जीवों के बीच में आसुरी कुल में जन्मे हुए बालक, और फिर भी भगवत नाम सतत ले रहे हैं। और उस समय उनके पिता ने क्या प्रयत्न किया कि येन केन प्रकारेण प्रहलाद जी के मुख से भगवत नाम छूट जाए। कितने प्रयत्न किए, मृत्यु तुल्य प्रयत्न किए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के मुख में से बस केवल भगवत नाम छूट जाए, भगवत गुणगान छूट जाए। विचार करो, असुर कुल में जन्मे हुए आसुरी जीव के लिए प्रयत्न क्या हो रहे हैं कि भगवत नाम छूट जाए, और आज वैष्णव कुल में जन्मे हुए वैष्णवों के बीच में रहने वाले जीवों के लिए, वैष्णव के लिए प्रयत्न क्या करने पड़ रहे हैं कि येन केन प्रकारेण भगवत गुणगान, भगवत नाम उसके मुख में आ जाए। यही तो प्रयत्न हो रहा है।
आज ये अपना जो ये मंडल है कृष्ण कृपा सत्संग मंडल क्यों चल रहा है, कहीं ना कहीं मूल में यही तो विचार कि ये न केन प्रकारेण वैष्णवों के मुख में भगवत नाम, वैष्णवों के कण में भगवत सत्संग पड़े, यही तो प्रयत्न है। उस समय प्रयत्न ये चल रहा था कि भगवत नाम छूट जाए, आज प्रयत्न क्या करना पड़ रहा है कि भगवत नाम आ जाए। शहर राय महाप्रभु यहाँ सबसे पहला कर्तव्य निरूपण कर रहे हैं, गुणगान। और उसके स्वरूप कुछ भी हो सकते हैं। आप एक आसन पर बैठकर अष्टाक्षर महामंत्र का जाप कर सकते हो। आप सतत वदत भिरेव सततम, चलते फिरते उठते बैठते अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करें। आप एक आसन पर बैठ के यमुनाष्टक स्तोत्र आदि का जाप करें, पाठ करें, या फिर ऐसे ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर कोई और माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भगवत गुणगान तक पहुंचे। माध्यम कोई भी हो सकता है, स्वरूप कोई भी हो सकता है, गुणगान आवश्यक है। गुणगान ही भक्त को भगवान के निकट ला देता है। गुणगान मानो एक सीढ़ी है, गुणगान मानो एक द्वार है। शिक्षा पत्र के प्रारंभ में ही शहराय महाप्रभु को ये स्पष्ट करना पड़ा कि सदोद्विग्न मना कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानस, कि पुष्टि मार्ग कैसे जीवों का मार्ग है कि जिनका मन उद्वेग युक्त है। किसके लिए उद्वेग? यहां कोई लौकिक उद्वेग की बात नहीं। जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण भगवत नाम लेने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए, भगवत सत्संग दर्शन करने के लिए जिसका मन उद्वेग युक्त है, ऐसे पुष्टि जीवों की ये बात है। शिक्षा पत्र के प्रारंभ में ही ये बात आ गई। श्री आचार्य चरण पंचपध्यानी ग्रंथ में भी बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं, श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता अनिर्वृता लोक वेदे ते मुख्या श्रवण सुखा। कि जिसका विक्षिप्त मन है भगवत गुणगान श्रवण के लिए, जो पागल सा हो गया है, ऐसे जीवों को ये श्रवण फलीभूत होता है। नहीं तो सुनते सब हैं, लेकिन फलीभूत किनको होता है? तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रति वर्जिता, कि जिसका विक्षिप्त मन हो गया है। आप देखो, जब सुखदेव जी महाराज अपने, जैसे कि श्रीमद् भागवत अंतर्गत भी जो गोकर्ण का आख्यान आता है, और गोकर्ण जी महाराज ने जो कथा करी, और 7वें दिन जितने भी कथा रसिक श्रोता जो थे वो ऐसे ही बैठे रहे और धुंधुकारी का उद्धार हो गया। कारण उन्होंने कथा कान से सुनी, ध्यान से नहीं सुनी। श्रवण तो किया लेकिन चिंतन मनन नहीं किया। श्री आचार्य चरण भी यही आज्ञा करते हैं कि ये श्रवण किसको चरितार्थ फलीभूत होता है, ये गुणगान किसको फलीभूत होता है। नहीं तो कई बार हमने देखा, कई एक वैष्णव के ऐसे नियम रहते हैं कि यमुनाष्टक के 9 पाठ करने, सर्वोत्तम जी के 35 पाठ करने, और फिर वो क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इतनी झपट से वो चलता है, बस एक संख्या पूर्ण करने के लिए ही बस वो एक क्रियावत गुणगान हो जाता है।
गुणगान भगवद नाम भी दो प्रकार से है, एक है साधन रूप गुणगान और एक है फल रूप गुणगान। ध्यान दें, ये जो संख्याओं को ध्यान में रख के जो किया जाता, फल को ध्यान में रख के जो करते हैं ना गुणगान, वो साधन रूप गुणगान है। और जो निष्काम भाव से, जैसे वो किशोरी बाई, ना यमुनाष्टक उसको आता था, न पूर्ण यमुनाष्टक का पाठ उसने किया, बस केवल एक तुक लग गई और श्री यमुना जी की कृपा उस पर हो गई। तो ये है प्रियजनों फल रूप गुणगान। तो शेर राय महाप्रभु ये जो प्रथम जो हमारा कर्तव्य निरूपण कर रहे हैं कि गुणगान, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। गुणगान के फल स्वरूप हमारे जितने भी दोष हैं, ये सब दोष ये गुणगान के फल स्वरूप दूर हो जाते हैं। श्री राय महाप्रभु ने शिक्षा पत्र में यह स्पष्ट निरूपण किया है। गुणगान तथा दुख भावनम दूसरा कर्तव्य है। विषय काफी लंबा है, लेकिन मैं समय भी हो गया है काफी, तो संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। दुख भावन यानी सहज ये विचार कि मैं कहाँ सेवा कर सकूं, मुझसे कहाँ ये सेवा बने हैं कि सत्संग बनता है, ये जो भी कुछ है वह बस केवल श्री वल्लभ की ही कृपा से है। एक ऐसा विचार, ये दुख भावन है। जो हम ये विचार करें कि सेवा कर रहा हूं, कि सत्संग कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अहंकार हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। याद करो चाचा हरिवंश जी का जो प्रसंग है कि जिन्होंने श्री गोकुलनाथ जी के लिए ऐसे वचन कहे। चाचा जी ने पूछा श्री गोकुलेश प्रभु कहाँ हैं, तो किसी ने कहा कि वो तो सेवा में हैं। और तब चाचा जी के मुख से ये वचन प्रकट हुए कि भाई सेवा तो बाप बेटा कर गए, ये तो लकीर पीट रहे हैं। और जहां ये शब्दों का श्रवण किया गोकुलनाथ जी ने, इतनी प्रसन्नता हुई कि हमको इतना तो समझा। और इतिहास प्रमाण है कि वो लकीर पीटने के उत्सव मनाया। ये दुख भावन है कि मुझसे कहाँ सेवा हो रही है, मुझसे कहाँ सत्संग हो रहा है। और जब हमारे भीतर एक ऐसे विचार, ऐसी भावना प्रकट हो जाती है, तो फल परिणाम स्वरूप ये जो तीसरा कर्तव्य है, दैन्य भाव, दीनता सहज भाव से प्रकट हो जाती है। भगवदगीता कहते हैं कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम वस्तु दैन्य भाव है। दीनताना पात्र मां मन मणि मुकी ने भेंट भगवंत जी ने धर जोड़। दैन्य भाव, दीनता से प्रभु सहज प्रसन्न होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर रहा हुआ अहंकार हमारी क्रियाओं, हमारी वाणी, हमारे व्यवहार द्वारा प्रकट हो जाता है। श्री आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम कोई साधन है तो वो दीनता है। और श्री राय महाप्रभु भी ये तीसरे कर्तव्य का जो निरूपण आप कर रहे हैं कि हमारे हृदय में रहा हुआ दैन्य भाव ही प्रभु को प्रसन्न करता है। दीनता रखें, दीनता रूपी पात्र रखें। दमला जी से जब श्री आचार्य जी ने पूछा, दमला तेने कछु सुनो,
दमला जी की दीनता आप देखो। जयराज सुनो तो सही पण समझो ना, समझ में तो तब आवे जब गुरु कृपा करे। और हमारे शहराय महाप्रभु, जिनके लिए तो कहा गया कि दीनता सागर, शहराय जी के जीवन काल में कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहां वो दीनता के दर्शन, शहराय जी की दीनता के दर्शन हमें होते हैं। आप देखो वो भगवतियों को रोकने जहां पधारे, कई ऐसे अन्य मार्गियों ने श्री राय जी के पास आके विनती करी, फरियाद करी कि आपके जो वैष्णव हैं वो रात्रि के समय कीर्तन करते हैं जिससे हमको अवरोध होता है। और ये जब सुना तो श्री राय जी दौड़ते हुए पधारे और क्या देख रहे हैं कि मंडली मध्य विराजत गिरधर, कि वहां वैष्णव की मंडली नृत्य गान कीर्तन गान कर रही है और मंडली के मध्य में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। और जहां ऐसे दर्शन हुए, शहराय महाप्रभु के मुख से वो वचन प्रकट हो गए, हो बारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पर। ये हमारे आचार्यों की दीनता है, ये हमारे वल्लभ की दीनता है, ये हमारे गुरु की दीनता है। पुष्टि भक्ति मार्ग प्रियजनों दीनता को मार्ग है। और अंतिम जो कर्तव्य को निरूपण करो, त्याग। जब ऐसो दुख भावन अहर्निश भगवत गुणगान और संग संग दैन्य भाव जब सहजता से प्रकट होवे, तब चौथो कर्तव्य त्याग, जो श्री आचार्य महाप्रभु को भी जो षोडश ग्रंथ अंतर जो एक सिद्धांत है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विसर्जन, कि भाई जो ठाकुर जी के, जो हमारे धर्म के अनुकूल है, जो हमारे प्रभु के सेवा के अनुकूल जो वस्तु ये व्यक्ति हैं, उनको संकल्प करो, और जो प्रतिकूल है उनको छोड़ो, उनको त्याग करो। बीज भावे दृढ़ त्यागात श्रवण कीर्तनात्, कि हमारे हृदय में रहे भय बीज भाव को दृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम त्याग आवश्यक है। वैष्णव की परिभाषा यही है, क्या छोड़नो और कहां जुड़नो। जैसे गुजराती में कहें कि शू छोड़वू અને શું ગ્રહણ કરવું એટલું સમજાઈ જાય ને, એ જ વૈષ્ણવ છે। ક્યાં બેસવું અને ક્યાં ઊભા થઈ જવું, શું સાંભળવું અને શું ન સાંભળવું। जैसे वो मुकुंदास जी की वार्ता में आवे, वो बारंबार कहे भाई कथा करें पंडित आके, और मुकुंदास जी मना करें। और एक दिन चौपाट खेल रहे थे और वो कथाकार आए, पंडित आए और कही कि मुकुंदास जी आज कथा श्रवण करोगे। तो चौपाट खेल रहे हैं और कह रहे कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है। तो वहां से भी रहो नहीं गयो। कथाकार ने कही चौपाट खेलवे को समय है और कथा सुनवे को समय नहीं है। और तब उनने इतनो ही कही कि तू हमारी कथा क्या जाने। कहवे को तात्पर्य शू श्रवण करवू अने कोना मुखे श्रवण करवू, शू ग्रहण करवू, क्या बेसवू, क्या उभा थई जवू, बस आटलो विवेक पण जो आपने आवी जाए तो एज पुष्टि मार्गीय त्याग से। पुष्टि मार्ग कोई छोड़ने का मार्ग नहीं है, पुष्टि मार्ग प्रभु से जोड़ने का मार्ग है। नहीं तो त्याग के तो आप देखो बलि राजा, जिनने अपना सर्वस्व समर्पण
सर्व वस्तु समर्पणम। और हमारे पुष्टि परंपरा में जो आप 252 भगवदीन के दर्शन करो, माणिक चंद दास जी की वार्ता के आप जो दर्शन करो तो आपको पता चले कि त्याग किसे कहते हैं। कि जहां श्री गोसाई जी उनके घर मुकाम किया और जो भी कुछ था वो सब श्री गोसाई जी को अर्पण कर दिया। श्री गोसाई जी के मुख से वो वचन प्रकट हुए कि जिनने वो बलि राजा को दर्शन नहीं किए हों वो माणिक चंद दास जी को देखें। ये पुष्टि मार्गीय त्याग है, सर्व वस्तु समर्पण। बस ऐसा विवेक प्रकट हो। तो ये एकादश शिक्षा पत्र अंतर्गत प्रभु प्रसन्नता के और पुष्टि जीवों के ये 4 कर्तव्य का निरूपण। सबसे पहले गुणगान, दुख भावन, दैन्य और त्याग। श्री राय महाप्रभु ये चौथे श्लोक में कर रहे हैं। विषय तो काफी बृहद है, लेकिन समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सुबह जब यहाँ तो रात्रि का समय चल रहा है, 10:30 हो गए हैं और कल प्रातः मेरी भी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तो समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए बड़ी प्रसन्नता कि आज ये कृष्ण कृपा सत्संग मंडल में जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 2 घड़ी जिए, घूम फिर के वही बात भगवदियों के वचन का अनुसंधान के बस घड़ी बेघड़ी भगवद सत्संग करवानु सौभाग्य प्राप्त थयु। तो बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खास करके सेजलबेन शाह उनके लिए और मंडल के सभी वैष्णवों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, और करिष्ये वचनम तव, जो भी आपने श्रवण किया है श्री आचार्य महाप्रभु के युगल चरणारविंद में यही विनती करता हूं कि बस उसके अनुरूप आपका जीवन बने, आपको अधिक से अधिक गुणगान भगवत सत्संग प्राप्त होता रहे, आप में दीनता प्राप्त हो, आप जो लौकिक अहंता ममता का त्याग करने का सामर्थ्य श्री वल्लभ आपको प्राप्त कराएं। यही सद्भावना के साथ पुनः 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 कृष्ण कृपा सत्संग मंडल के सभी स्नेही वैष्णवों को हृदय से शुभाशीर्वाद। और उष्णकाल मनोरथ चल रहे हैं, गंगा दशहरा और स्नान यात्रा के उत्सव भी अब आने ही वाले हैं। तो आप भी अपने घर में अपने निज श्री ठाकुर जी को खूब, ये उष्णकालीन जो समय है, श्री यमुना जी का जो काल चल रहा है, अधिक से अधिक ठाकुर जी को लाड लड़ाएं। यही भावना के साथ पुनः सेजलबेन को हृदय से शुभकामना के साथ मैं अपने वाक पुष्प श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद समर्पित करके विराम लेता हूँ। अस्तु। થેન્ક યુ સો મચ જયશ્રી, આપશ્રીના વચનો સાંભળીને અમને તો ખૂબ જ આમ હૃદયમાં ભરી આવ્યું અને આટલું બધું સરસ નોલેજ તમે શિક્ષાપત્ર વિશે કીધું. શિક્ષાપત્રમાં તો કેટલું બધું જાણવા જેવું છે, એ તો મોટો ભંડાર છે. થેન્ક યુ સો મચ. અને અમે તમને ફરીથી ઇન્વાઇટ કરીએ શ્રી કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગમાં આપશ્રીનું. આપશ્રી ऑलवेज हमको ये मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन देते रहो उसी अने मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ सत्संग हुआ और ये सारे वैष्णव के साथ सत्संग हुआ जो हमको यहाँ से जूम के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण कृपा सत्संग से। तो सभी वैष्णवों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग के लिए और सत्संग के लिए जो जो उन्होंने टाइम दिया। सभी युक्ता को खूब फिर से धन्यवाद। और हम लोग ऐसे ही सत्संग करते रहे। सत्संग करना कितना इम्पोर्टेंट है आज हमने वो तो इन्फॉर्मेशन ले लिया, बस उसको अप्लाई रोज ही डेली लाइफ में करना बहुत बहुत जरूरी है। हमको धर्म के अनुसार होना है, धर्म को हमारे अनुकूल नहीं करना है। बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जो हमने सुनी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको डेली लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। तो बहुत थैंक यू सो मच। बस सभी वैष्णवों को खूब खूब आभार और खूब खूब धन्यवाद। उसी के साथ मैं
चक्षुषा को बोलूंगी कि लोग आशीर्वाद की ओर बढ़े। चक्षुषा। जय श्री कृष्ण। गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चरण केरो भरोसो, दृढ़ाई न चरण केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र जटा बीना, सब जुग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ाई न चरण केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ाई न चरण केरो। दृढ़ाई न चरण केरो भरोसो, दृढ़ाई न चरण केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। શ્યામચંદ્ર શ્રી અમને મહારાણી की जय, श्री वल्लभा। સેજલબેન હવે હું ઓફલાઈન થાઉં છું. જય જય શ્રી આપશ્રી ફરીથી ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપશ્રી અમારી સાથે જોડાજો. હા ભારતીબેન કેમ છો? ઇટ્સ અ સો આપની કૃપાથી તમને ઓનલાઈન જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ જય જય. પણ મને પણ અચાનક લિંક મળી ગઈ છે, કેટલી કૃપા એટલે તમે ગોતી લ્યો છો. સારું સારું કહેવાય. મારી ફ્રેન્ડ ને મોકલાવી લિંક, મને કે જલ્દી જોઈન થા, જે શ્રી છે. મેં તો અરે વાહ સરસ, જે બહુ આનંદ થયો. ચાલો ઓકે મળીએ. વૈષ્ણવ ને ભગવત સ્મરણ જય જય પ્રણામ. दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ, જય જય શ્રી આના કોણ છે? આના કોણ છે? મને આમાં એડ કરજો, હરિરાય બાબા ને પધારે ને તો ને મને આમ ને આપસી ના ગ્રુપમાં. તો જય જય દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ સો મચ. હા આશીર્વાદ.